Okay. Yeah, so now we will see the question answers of chapter 1.3. Have you ever seen? First is the warming up session. ठीक है? Warming up में क्या है? Words that have same spelling but they are different in meanings are called as homographs, जो हमने पूरे chapter पूरे poem में देखा. For example, a temple fair attracts a lot of crowd. ठीक है? And her performance in the test was fair. तो यहाँ पे first fair का meaning क्या हो गया बच्चा लोग? What does the first fair over here means? मेला, मिस मेला. Yeah, perfect. और यहाँ पे her performance in the test was fair. मतलब क्या? Good. Yeah, good या average जो हम बोलते हैं fair वो. So यहाँ पे example दिया है homograph का. Second is a rose is the king of flower, and second example is the sun rose with a golden flow. So what does rose over here means? Flower. Yeah, and second वाले rose में मतलब it rised up. rise up. Perfect. So think of 5 homographs. Now they are asking you to think of such 5 homographs. Then write 2 sentences of your own. Okay, and you need to create sentence as well to bring out the difference in meanings. कि जैसे हम यहाँ पे difference निकाल रहे हैं, वैसे even you need to find them out. ठीक है, यही question वापस है यहाँ पे. So now we will see answers. ये मैंने आपको solve करके दिए हैं, but if you guys find some answers, you can definitely write it down. ऐसा नहीं है मैम ने दिया है तो यही लिखे, अगर आपको आता है तो बच्चा feel free enough to write it down. ठीक है, तो first example है bow. ठीक है, bow का क्या एक आंसर लिखा है? The prince slowly put down the bow and arrow. And second is, should I bow if I see the king? Asked the little boy. तो यहाँ पे क्या मीनिंग बन जाएगा बोलो? फर्स्ट वाला जो तीर होता है तीर कमान का, एंड सेकंड वन इज टू शो गेस्चर. To show gesture. Perfect. जो झुकना हम जिसे बोलते हैं, that is second one, and the first one is bow and arrow वाला, जो तीर कमान वाला. Perfect. Second, content. Okay, one should always be content with what one has. And second is, you must always check the nutritional content of what you eat. चलो अभी इसका बताओ, इसका क्या आ जाएगा? मिस फर्स्ट कंटेंट का satisfied या happy. Perfect. Satisfied is the perfect word, that you should be satisfied with whatever you have in your life is what the first content means. And second one, बच्चा लोग, जो उसमें कंटेंट्स है मतलब किससे वो बना है. proportions of food. proportions या quantity आप बोल सकते हो कि जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है जिससे वो बना है, ingredient वो. Perfect. Next, live. One must learn to live within one's mean. And second, it is dangerous to touch a live. Oh, sorry, live. So sorry, mera pronunciation. Sorry. The third one is life. One must learn to live. नहीं, ये to touch a live wire. To one must learn to live within. ठीक है, चलो ये थोड़ा ऐसा डाइसी है. सी ठीक है, चलो प्रोनाउंसिएशन अलग जा रहा है ना. ओके, नो प्रॉब्लम. One must learn to live within one means, and second is, it is dangerous to touch a live wire. ठीक है, चलो यहाँ पे बताओ. मतलब ये ऊपर वाला बोल रहा है कि हमको एक मींस के मतलब ऐसा लाइव रहना है, और दूसरा वाला वो वायर में जो करंट रहता है ना, वो लाइव वायर को टच करना बहुत डेंजरस ऐसा बोला. एक्टिव वायर. परफेक्ट. और फर्स्ट वाला क्या बोला बच्चा? फर्स्ट वाला आप क्या बोल रहे थे शॉन? फर्स्ट का क्या बता रहे थे आप? देखो मतलब हमें एक मींस के साथ एक लाइव रहते हैं ना, मतलब जिंदा रहना ऐसा. परफेक्ट. सही है. Next is minute. His voice was getting louder every minute. There were minute particles of dust in the air. चलो इसका बताओ. मिस मिनट मतलब टाइम और minute मतलब little. Small particles. Perfect. Next, tear. A tear fell from the eye of the old woman.
tear the paper into 4 pieces, said the teacher. टीयर मतलब आंसू और वो टेयर मतलब मिस वो टीयर मतलब आंसू और जिस दूसरा टीयर ये रोने वाला टीयर और या नीचे वाला टीयर मतलब पार्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो पेपर होमोग्राफ समझा ना बच्चा, बेसिकली उसका स्पेलिंग सेम होता है बट उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। और होमोग्राफ और क्या होता है आपको दूसरा? होमोग्राफ और होमोफोन्स। फोन होमोफोन्स में कैसे होता है? प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट वर्ड का स्पेलिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, नाउ रिमेम्बर वी हैव डन फिगर्स ऑफ स्पीच, पर उसमें हम लोग ने पन आई गेस इतना किया नहीं है, राइट? पन नो मिस तो नहीं किया। तो पन क्या होता है बच्चा? when words with same spelling or pronunciation are used in such a way that they convey more than one meaning, then the figure of speech which is involved is called as पन। ठीक है, कि एक जब आप एक वर्ड यूज करते हो जिसका स्पेलिंग या तो उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, एंड जब वो सेंटेंस में आप एक या दो मीनिंग्स कन्वे कर देते हो या सेंटेंस कन्वे कर देते हो, इट इज जस्ट लाइक एपीग्राम। एपीग्राम भी हम लोग ने शायद नहीं किया है ना? नहीं नहीं नहीं, परफेक्ट। एपिग्राम कैसा है? एपिग्राम इज ऑल्सो शॉर्ट विटी स्टेटमेंट, ठीक है, कि विच हैज नो मीनिंग, मतलब उसमें सिर्फ आपको मैसेजेस मिलते हैं, या इट इज अ सेंटेंस विच हैज अ ह्यूमर और विच हैज ह्यूमर, और यू कैन से सम मैसेज, ब्रीफ मैसेज, और मतलब एक सिंपल लाइन होती है जिसका कोई स्टेट मतलब जिसका किसी से कुछ रिलेशन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज एपिग्राम। एंड एपिग्राम और पन ऐसे साइड बाय साइड लिंक होता है, जैसे हम सिमिली और मेटाफर लिंक करते हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है, बट सिमिलर में यू हैव दैट कैरेक्टरिस्टिक्स वेर इन मेटाफर यू डोंट फाइंड इट। सिमिलरली एपिग्राम और पन भी काइंड ऑफ मैच होते हैं। एपिग्राम भी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो सिर्फ आपको मैसेज या एक मीनिंग कन्वे करता है, एंड पन भी वैसा ही होता है बट जिसमें आप एक वर्ड यूज करते हो। सी, अ पन इज अ जोक दैट मेक्स अ प्ले ऑन वर्ड्स, ठीक है, कि पूरे वर्ड्स का प्ले है वो, टिपिकली बाय यूजिंग वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। लाइक एक यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखो बच्चा लो, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? हेलो, हाउ, हाउस लाइफ, हेलो, इट्स अ स्ट्राइफ। तो एक अगर आप सेंटेंस देखो तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सेम है दोनों का, बट मीनिंग यहाँ पे अलग अलग है। आई एम आस्किंग हेलो हाउ इज योर लाइफ, एंड सेकंड में आई एम टेलिंग दैट हेलो इट्स अ स्ट्राइफ। तो समझ रहे हो, व्हेन द प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट द मीनिंग ओवर हियर इज डिफरेंट, एंड आप एक ही स्टेटमेंट में उसको यूज करते हो। आर यू गेटिंग व्हाट डज पन मीन्स? यस मिस। Everyone? यस। ओके, इसको हम ब्रीफ में कभी करेंगे, जब हम ग्रामर करेंगे तब अच्छे से एकदम एग्जांपल्स लेके करेंगे, बट फॉर नाउ ऑन यू कैन अंडरस्टैंड। सी, एक एग्जांपल यहाँ पे है, यू कैन ट्यून अ गिटार बट यू कांट ट्यून अ फिश अनलेस ऑफ कोर्स यू प्ले बास। ठीक है, मतलब बेस या बास जिसे हम बोलते हैं। सो यहाँ पे कौन सा यूज हो गया? You can tune a guitar, but you can't tune a fish. Pronunciation same है, देखो ये यहाँ पे you can tune a guitar, but you can't tune a fish. समझा? तो pronunciation same है, but word अलग अलग है और दोनों का meaning अलग अलग होता है। समझा? What does it mean? यस। Yeah, एक second example है, time flies like an arrow, fruit flies like a banana. ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे फ्लाइज यूज किए गए हैं। नाउ बच्चा लोग, पन में भी यू हैव डिफरेंट टाइप्स, यू हैव डिफरेंट कैटेगरीज, तो उसको हम कभी अच्छे से करेंगे जब हम फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे ना, तभी। यहाँ पे भी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है। अभी ये कैसे है? यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट यू नो हम लोग ने जैसे ऊपर देखा कि इट इज समटाइम्स अ जोक बट इट इज बेसिकली प्लेइंग विथ वर्ड्स, और समटाइम्स इट इज अ वर्ड विच कन्वे मोर देन वन मीनिंग। ठीक है, कि कोई सेंटेंस है जो मोर देन वन मीनिंग एक्सप्रेस करता है। अभी यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन वाला है वो हम लोग ने
we had written, where do you find giant snails on the ends of giant's finger? ठीक है, that where do you find giant snails on the end of giant's finger? तो यहाँ पे मैंने ऐसे words use किए जिसका pronunciation same है, but यहाँ पे if you ask that how do turtles talk to each other, by using shell phones. So this is kind of something which is expressing more than one meaning. तो ऐसे बहुत सारे टाइप है, अगर अभी नहीं समझता है कोई बात नहीं, हम जब फिगर्स ऑफ स्पीच करेंगे तब अच्छे से समझेंगे, बट एक आपको आइडिया आया क्या है पन, जब वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं बट उसका मीनिंग अलग होता है. क्लियर? Yes, miss. यस मैम. ओके. Next, in poetry, when a question is asked, not to get an answer, but to emphasize a point in a or a fact, it is an example of interrogation, right? Figures of speech में हम लोग ने एक interrogation, हम लोग ने एक apostrophe भी देखा है. Interrogation मतलब क्या होता है, जब कोई question पूछा जाता है, and apostrophe मतलब क्या, कभी कोई shock या surprise express किया होता है तब. तो ये क्वेश्चन पोइट्री में भी हम लोग ने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, but they are not expecting an answer from us, but एक पॉइंट है जिससे वो लोग एम्फसाइज कर रहे हैं, जिससे हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं. तो such kind of figures of speech is an example of interrogation, right? For example, when can the glory fade, or isn't it time for the autumn's glow? Basically जो क्वेश्चन या जो सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेशन वाला फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं. So now what they have asked you, that you need to write 3 or 4 examples of interrogation which is used in poetry. हमारे पोइट्री में या तो आप खुद से लाइक कोई दूसरे पोइट्रीज में भी ढूंढ के निकाल सकते हो. So यहाँ पे some of the examples are given, like if winter comes, can spring be far behind? So again a question is asked, so this is an example of interrogation. What's in a name? If you prick us, do we not bleed? So such examples where question and ask, it is an example of interrogation. समझा सबको बच्चा लोग? Yes, miss. Yes, miss. Okay. Now now we will come to वार्मिंग अप सेशन. ठीक है, हम वार्मिंग अप सेशन पे आते हैं, सॉरी वर्कशॉप सेशन में. अभी तक हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने वार्मिंग अप देखा, अब हम वर्कशॉप पे आते हैं. फ्रॉम ईच लाइन इन द पोएम पिक आउट द वर्ड दैट इज होमोग्राफ. जो मैं आपको वो हम जब पढ़ रहे थे पोएम तभी हम लोग ने डिस्कस किया कि पोएम में से कौन से वर्ड को एज अ होमोग्राफ यूज किया है वो आपको बताना है. ठीक है, that you need to show. Write its meaning in the context of phrase in the poem and then write the other meaning implied in the question. ठीक है, कि आपको पोएम में उसका कौन सा मीनिंग यूज किया है वो बताना है, एंड पोएम को छोड़ के जो कौन सा मीनिंग है वो आपको बताना है. ठीक है, तो यहाँ पे है बेड का, यहाँ पे एक मीनिंग बताया गया है जो पीस ऑफ फर्नीचर है, और अदर मीनिंग क्या हो सकता है, जो रिवर बॉटम है वो. फिर सेकंड मतलब फर्स्ट स्टैंजा में सेकंड लाइन है हेड, जिसका मीनिंग है अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, और दूसरा जो हम लोग ने देखा दैट इज पार्ट ऑफ हैमर. Third is foot, which we have seen, the part of leg on which a person stand or move, and another is a base of mountain. And host जो है हम लोग ने देखा a pair of stocking और tights के, जो आपके stockings या socks या tights होते हैं उसका pair, and another is a flexible tube. फिर सेकंड में हम लोग ने देखा आई इज द ऑर्गन ऑफ साइट इन वन फेस, जो हमारे ह्यूमन बॉडी का होता है वो, एंड द सेकंड इज द होल और द ब्लंट एंड ऑफ अ नीडल थ्रू विच अ थ्रेड कैन pass. फिर था wing, which is an organ in bird which is meant for flying, and another one is a section of part of a building, के जो building के sections होते हैं वो. Ribs, we have seen that is curved bones which is extending from spine to sternum, and another one is a thin metal with spokes attached to the central stick of an umbrella, कि वो जो सारे wires थे umbrella को वो जहाँ पे जाके attach होते हैं उसे हम बोलते हैं ribs. And trunk means a large storage box जिसमें हम हमारा सामान store कर सकते हैं, and another means wooden stem of a tree. फिर थर्ड में हम लोग ने देखा, या
Means we have to write this all in the textbook now. दैट वुड बी अ होमवर्क बच्चा लोग, तो आप वैसे भी आप होमवर्क में करोगे ना तब आपका हो जाएगा। पर मिस टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में? नोटबुक में लिख लो ना, ओके मिस। बिकॉज आप नोटबुक का मुझे होमवर्क में सेंड करोगे ना, तो इट वुड बी तो बेटर मिस आप नोट। ओके मिस, फिर अब तक यही है ना होमवर्क? या आई लेट यू नो ना लास्ट में, सेशन तो खत्म होने दो। ओके ओके। Yeah. Third paragraph is teeth. Teeth is the hard structure in the mouth which is used for biting and chewing. And another one is long metal prongs of a garden tool, which is a garden tool which is used for clearing leaves. Second is hands, that are the end part of arms which is beyond the wrist. And another one is the pointer on a clock. Plot an evil or wicked plan, or a small area of land. And bark is the sharp cry of a dog or fox. And over here means the hard outer covering of tree trunk. समझा है सबको ये पूरा वर्ड, उसका मीनिंग पोयम में Yes, यूज miss. किया हुआ एंड अनदर। Yes, miss. Yes, miss. Yeah. Next, write 2 lines from the poem that you find most humorous. Justify your choice. Again, this is like a पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ठीक है? कि आपको क्या पूछा है? अरे ये क्या हो गया, 1 मिनट। ओके, इसके मैंने आंसर्स लिखे थे, आई गेस वो ठीक है, चलो। एनीवे इट इज या ओके, इसमें ही है, सॉरी फाइन फाइन फाइन। राइट 2 लाइन्स फ्रॉम द पोयम दैट यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस, ठीक है? कि पोयम में आपको कोई 2 लाइन जो बहुत ह्यूमरस लिखी वो आपको लिखना है। नाउ दिस इज लाइक अ पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, आपको आपका रिस्पॉन्स लिखना है। कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल, कि यहाँ पे पूछा है। तो ये मैंने ये एक लाइन लिखा दैट आई फाइंड दिस ह्यूमरस बिकॉज I can just imagine someone tickling the spokes of an umbrella and trying to get it to respond. So that is something which I find funny or humorous. And the second one is, does the needle ever wink its eye? I find this humorous because I think of myself holding a needle that is winking. So this is something which I found funny. आपको जो line लगे from the poem which is humorous वो आपको लिखनी है, and you also need to justify, okay, that why you find that line funny. Clear बच्चा लोग? Yes, miss. Okay, now यहाँ पे Yes, from miss. यहाँ पे now from the poem you need to find 3 examples of each of the figure of speech which is mentioned, ठीक है? कि interrogation के आपको 3 ऐसे लाइन निकालने हैं। तो ये तो हम लोग ने पहले भी देखा, कोई पूरा पोयम ही इंटरोगेशन है, पूरे पोयम में ही क्वेश्चन पूछा है। सो एनी 3 लाइन यू कैन पिक एंड राइट। पन जो हम लोग ने देखा, पन मतलब क्या, एक ही सेंटेंस को मतलब एक ही वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है उसको यूज किया जाता है, और समवन व्हिच इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस वन और मोर देन वन मीनिंग। तो ये अभी एक लाइन हो गई पूरा, जैसे हैज द फुट ऑफ माउंटेन्स एनी टोज, तो यहाँ पे 2 मीनिंग मुझे पता चलते हैं कि माउंटेन का फुट है उसको टोज है और ह्यूमन का टोज है। तो अगेन दिस बिकम्स पन बिकॉज एक ही लाइन में 2 more than one meaning is expressed. Can you tickle the ribs of parasol? Again the same. And have the hands of a clock any left or right? तो एक ही लाइन में जब आपको एक से ज्यादा मीनिंग पता चलता है, that becomes pun. personification हम लोग ने देखा है। What does personification means? जब नॉन ह्यूमन बीइंग को बोलो Human ability दे देते हैं. परफेक्ट, जब नॉन ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन क्वालिटी या ह्यूमन एबिलिटी देते हैं तब हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। सो हैज द फुट ऑफ माउंटेन एनी टोज, तो हमें पता है कि माउंटेन क्या है, एक नॉन ह्यूमन बीइंग है जिसको फुट एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है या टोज की क्वालिटी दे दी है। वैसे फिर नीडल है, वो भी एक नॉन लिविंग बीइंग है पर उसको ह्यूमन क्वालिटी क्या दी है, विंकिंग का। तो विंकिंग इज समथिंग व्हिच ह्यूमंस डज and that is a human quality which is given. Can you tickle the ribs of a parasol? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
टिकल ह्यूमन क्वालिटी क्या दी है, टिकलिंग की ह्यूमन क्वालिटी दी है, किसको दी है, पैरासोल को दी है, ठीक है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है बच्चा लोग, मिस रिपीटेशन ऑफ जिसमें लेटर। लेटर्स रिपीट होते हैं। रिपीटेशन ऑफ या एलिट्रेशन एज द नेम सजेस्ट, ए मतलब क्या, जिसमें अल्फाबेट्स रिपीट होते हैं, ए याद रखने का, एलिट्रेशन का ए, अल्फाबेट्स का ए, जब अल्फाबेट्स रिपीट होते हैं तब हम बोलते हैं एलिट्रेशन। सो और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड, सो ये over here you can see the alphabet H is repeated, और open the trunk of a tree at all, so यहाँ पे the alphabet T is repeated, and what is the sound of the bird's bark, so यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, birds bark, the sound of B is repeated, ठीक है। Next, form groups of 4 or 5. Think, discuss and add at least one or more stanza using the same style and devices as the poet has used. It should include homographs, interrogation and the same rhythm and rhythm scheme, ठीक है। कि हम लोग ने पूरे पोएम में देखा पोएट ने क्या यूज किया है, होमोग्राफ यूज किया है और इंटरोगेशन यूज किया है, राइट। पूरे पोएम में इंटरोगेशन क्वेश्चंस पूछे हैं। सिमिलरली आपको सेंटेंस निकालने हैं, ठीक है। हैव, डज और आर वर्ड से आपको सेंटेंस निकालने हैं जिसमें आप भी होमोग्राफ यूज करोगे एंड वो भी एक इंटरोगेशन मतलब क्या, क्वेश्चन के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे इफ यू सी, डू एलिफेंट्स बाथ विद देयर ट्रंक्स ऑन ऑल इन अ बैच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, दीज आर एग्जांपल्स व्हिच आई हैव सिलेक्टेड, इसको इग्नोर करो, आप लोग खुद सोचो, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू डू, राइट। तो आप लोग सोचो ऐसे कि ऐसे होमोग्राफ्स, आप पहले तो होमोग्राफ निकालो एंड फिर उसको इंटरोगेशन के स्टाइल में कैसे यूज करोगे, जैसे पोएट ने यूज किया है वैसे सोचो, ठीक है। एक ये पार्ट होमवर्क, क्योंकि सारे आंसर्स तो मैंने दिए हैं, तो थिंक अबाउट दिस एंड यू नीड टू डू इट इन होमवर्क, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं स्किप कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, अभी ये यहाँ पे लास्ट में है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट टू मेक पन्स, ठीक है। कि पन्स आपको बनाना है, जो फिगर ऑफ स्पीच पन हम लोग ने देखा, तो यहाँ पे आपको डैश दिया है एंड ये ऑप्शंस में से बचा लो, यू नीड टू सिलेक्ट। तो शी हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी बट नेवर डैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बट शी नेवर डैश इट, तो यहाँ पे क्या लिखा, डेवलप, बट शी कैन नेवर developed it, perfect. He was struggling to work out how lightning works when it dash him, तो यहाँ पे से ऑप्शन में से यूज किया when it struck him, तो ऐसे आप पन्स बना सकते हो जहाँ पे एक ही सेंटेंस में आपको दो से ज्यादा मीनिंग मिला। Every calendar's day are dash, so every calendar's day are numbered. A bicycle cannot stand on its own because it is dash, because it is टू टायर्ड, तो ये क्या हो गया, एक फनी स्टेटमेंट हो गया कि हमें भी पता है ये बाइसिकल कभी टायर्ड होता नहीं है, बट जस्ट टू क्रिएट इट अ ह्यूमरस सेंटेंस दे यूज इट, सो दैट इज बेसिकली fun. I am reading a book on anti-gravity. It is possible to dash the book to put down the book. अभी हमें पता है कि बुक एंटी ग्रेविटी पे पढ़ रहा है तो बुक को तो वो नीचे रख ही सकता है, तो दैट इज समथिंग, दैट इज हाउ दे मेक इट फनी कि पुट डाउन मतलब क्या, सिंस वी स्टडी ग्रेविटी इज पुटिंग डाउन थिंग्स डाउनवर्ड, तो एंटी ग्रेविटी मतलब वो वैसे उसे यूज कर रहा है, दैट इट इज इम्पॉसिबल टू पुट डाउन द बुक। समझा कैसे पन्स को यूज करते हैं। Yes. Yeah, I would tell you a chemistry joke, but I know I wouldn't get a reaction. What do you call what's in when Sherlock isn't around? So homeless, things which are related to it basically. I would tell a history joke, but it is too old fashioned. ठीक है, so that is how you come towards the end. समझा बच्चा लोग सबको poem writings